Hello friends, this is Nimai Godai. I welcome you to the concepts of zoology. In this video, I am going to talk about some important things which will help you to understand the process of translation. So watch this video till the end. In my coming video, I will tell you the mechanism of translation. If you like my channel, please press the like button and subscribe my channel as well. I want to make century of the subscribers. So I need your support. One more thing. I have a task for you. I will give you a task at the end of this video. So be ready for that. Without going late, let's start the topic. हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे ट्रांसलेशन के बारे में। ट्रांसलेशन का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू एनी अदर लैंग्वेज। ओके, ये जो ट्रांसलेशन है ये हम सेल में बात कर रहे हैं कि ये ट्रांसलेशन इन सेल, ओके, कोशिका में। तो यहाँ ट्रांसलेशन का मतलब हुआ प्रोटीन सिंथेसिस फ्रॉम मैसेंजर आरएनए। ओके, मैसेंजर आरएनए में बहुत सारे कोडॉन्स होते हैं जो कि अमीनो एसिड को कोड करते हैं। हर एक कोडॉन अमीनो एसिड को कोड करता है और हम लोग जानते हैं कि प्रोटीन क्या है, अमीनो एसिड का पॉलीमर है ना। बहुत सारे अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़कर प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है ना। तो कोडॉन कोड्स फॉर प्रोटीन अमीनो एसिड एंड फॉर्म्स द प्रोटीन। सो बिफोर बिगिनिंग दिस चैप्टर आई वांट टू शेयर समथिंग अबाउट दिस। सो फर्स्ट इज बॉन्डिंग। ओके, you have to remember that adenine always forms double bond with thymine, okay, and guanine forms triple bond with cytosine. You cannot say that adenine forms bond with cytosine. No, adenine will always form bond with thymine and guanine will always forms bond with cytosine. So it occurs in DNA. Okay, what happens in RNA? If we talk about RNA, thymine is not present. Okay, uracil is present. In RNA, uracil is present in place of thymine. So in RNA, you will see adenine forms double bond with uracil and guanine forms triple bond with cytosine. So this is all about the bonding, okay, between nitrogenous bases. Now we see ribosomes. Ribosomes are very important for translation, okay, because the ribosomes play major role in translation. So what happens in ribosome? Ribosome consists of two subunits. One is smaller subunit and second one is larger subunit. So in prokaryotes, the smaller subunit is denoted by 30S and the larger subunit is 50S. Okay, so these will form these are present in dissociated state. During translation, they join together and form the 70S ribosome. Okay, it is the prokaryotic ribosome 70S. Now, in ribosome, 3 binding sites are present. First is A site, second one is B site, and third one is E site. A site is the binding site for amino acid transferred RNA. What is this? This is nothing but transferred RNA plus amino acid. Okay, that will be called amino acid transferred RNA. P site, it is the binding site of peptidyl transferred RNA. Okay, peptidyl transferred RNA is the combination of
peptidyl transferase plus transferred RNA. Okay, peptidyl transferase helps in the formation of peptide bond between the amino acid. Okay, now E site. E site is the exit site. Okay, the transferred RNA with amino acid enters through the A site. Okay, comes to lie at the P site. Okay, during peptide bond formation, and then when the amino acid has been involved in the peptide bond or protein chain, the transferred RNA will become free from amino acid, so it will come out from the E site. So this happens in translation. Okay, now the third thing we will talk about is transferred RNA. Okay, transferred RNA. देखिए, ट्रांसलेशन को समझने के लिए ये चीज समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज है ये, तो इसे गौर से सुनिएगा। हम अभी बात करने वाले हैं ट्रांसफर्ड आरएनए के बारे में। ट्रांसफर्ड आरएनए, इट इज अ टाइप ऑफ आरएनए। ओके, इट हैज 2 बाइंडिंग साइट। यहाँ देख सकते हैं पहला बाइंडिंग साइट जो है ये अमीनो एसिड का है और सेकंड बाइंडिंग साइट एंटीकोडॉन का है। ठीक है, हर एक अमीनो एसिड के लिए एक स्पेसिफिक ट्रांसफर्ड आरएनए सेल में प्रेजेंट होता है ना। तो हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि ये एक ट्रांसफर्ड आरएनए हो गया, यहाँ एंटीकोडॉन क्या है, UAC। ओके, UAC एंटीकोडॉन है। हम लोग कोडॉन एंड एंटीकोडॉन के बारे में नेक्स्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये एंटीकोडॉन जो है ये मिथियोनाइन के लिए है। ऐसा क्यों है, वो कोडॉन से रिलेटेड है, हम इसको बताएंगे, है ना। क्योंकि हम लोग जानते हैं AUG क्या है, ये एक कोडॉन हो गया, है ना। AUG कोड्स फॉर मिथियोनाइन। ओके, एंड द एंटीकोडॉन फॉर AUG इज UAC। ओके, सो ये जो ट्रांसफर्ड आरएनए है जिसमें एंटीकोडॉन UAC है, इसके साथ कौन सा अमीनो एसिड बाइंड है, मिथियोनाइन। तो ये एक पहला चीज हो गया। दूसरा चीज देखिए क्या है, यहाँ पर मैंने 2 ट्रांसफर्ड आरएनए दिखाया है, दोनों में ही एंटीकोडॉन देखिए अलग अलग है। तो UAC एंटीकोडॉन इज फॉर मिथियोनाइन एंड AAA एंटीकोडॉन इज फॉर फेनिलएलानाइन। These both of these are amino acid. Okay, this PT indicates the peptidyl transferase enzyme, which forms the peptide bond between amino acid. Okay ना, so ये दूसरा चीज हो गया। अब तीसरा चीज जो है वो ये है कि पेप्टाइडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम ने दोनों के बीच पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया, है ना, मिथियोनाइन एंड फेनिलएलानाइन। तो ये ट्रांसफर्ड आरएनए तो फ्री हो गया ना अमीनो एसिड से। यहाँ देखिए कोई अमीनो एसिड नहीं है ना, तो ये फ्री हो गया। तो ये राइबोसोम के ई साइट से बाहर निकल जाएगा, है ना। जो पेप्टिडाइल ट्रांसफर्ड आरएनए है वो ये है, ये पी साइट में प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, एंड ए साइट से कौन इंटर करेगा, ये अमीनो एसिड ट्रांसफर्ड आरएनए। ठीक है, इस तरह से हर एक कोडॉन मैसेंजर आरएनए का डिकोडेड होता रहेगा और अमीनो एसिड का पॉलीपेप्टाइड चेन बनता रहेगा, यानी कि प्रोटीन का फॉर्मेशन होता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ 3 चीज हमने क्या दिखा कि ट्रांसफर्ड आरएनए में अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट एंड एंटीकोडॉन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होता है। हर एक अमीनो एसिड के लिए हर एक अलग अलग ट्रांसफर्ड आरएनए होता है स्पेसिफिक। ठीक है, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम अमीनो एसिड के बीच पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, जब अमीनो एसिड ट्रांसफर्ड आरएनए से रिलीज हो जाता है तो ट्रांसफर्ड आरएनए फ्री हो जाता है और ये एग्जिट साइट से राइबोसोम से बाहर निकल जाता है।
ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कोडॉन एंड एंटी कोडॉन के बारे में। कोडॉन एंड एंटी कोडॉन, ठीक है। कोडॉन होता क्या है? ये कुछ नहीं बल्कि ये जेनेटिक कोड वर्ड्स है जो कि अमीनो एसिड को कोड करता है, ठीक है। मतलब हर एक कोडॉन किसी न किसी अमीनो एसिड के लिए कोडिंग वर्ड होता है, ठीक है। तो टोटल 64 कोडॉन्स हैं, है ना। टोटल 64 कोडॉन्स है और अमीनो एसिड की संख्या कितनी है? 20 अमीनो एसिड है, इसेंशियल अमीनो एसिड एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। ओके, तो हर एक, जैसा कि मैंने कहा शुरू में ही, AUG ये कोडॉन हुआ। ट्रिपलेट कोडॉन इसलिए बोलते हैं क्योंकि 3 नाइट्रोजिनस बेस का ये कोडॉन होता है, ठीक है। इसलिए इसको ट्रिपलेट कोडॉन कहते हैं। तो AUG कोड्स फॉर मेथियोनाइन। मेथियोनाइन इज अ अमीनो एसिड। सिमिलरली UUU it codes for phenylalanine. Okay, similarly you will see 64 codons. Okay, अब ऐसा नहीं है कि हर एक कोडॉन्स अमीनो एसिड को कोड करता है। 3 ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जो किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करता, जैसे कि UAA, UAG एंड UGA, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग नॉनसेंस कोडॉन कहते हैं, है ना। जब भी ये कोडॉन्स मैसेंजर आरएनए के सीक्वेंस में आ जाता है, उसके बाद वाले सीक्वेंस का, है ना, ट्रांसलेशन नहीं हो पाता। आई वांट टू से दैट इफ द मैसेंजर आरएनए कंटेन्स UUU, CUU, UAA, AUU 3', ओके। ये UUU इसका कोडॉन का अमीनो एसिड बनेगा, ठीक है। CUU इसका भी अमीनो एसिड बनेगा, लेकिन UUU, UAA इससे कोई अमीनो एसिड कोड नहीं होता। तो क्या होगा कि टर्मिनेशन यहीं पर हो गया, इसके बाद से और अमीनो एसिड का फॉर्मेशन रुक जाता है, इसीलिए इसको टर्मिनेशन कोडॉन भी कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि कोडॉन अगर AUG है, ठीक है, तो इसका एंटी कोडॉन क्या होगा? बताइए क्या होगा? इसका एंटी कोडॉन होगा UAC। ये बहुत आसान है, ठीक है, क्योंकि हम लोग, मैंने शुरू में कहा था, एडेनाइन फॉर्म्स बॉन्ड विद यूरासिल, यूरासिल फॉर्म्स बॉन्ड विद एडेनाइन and guanine forms bond with cytosine. So what is it? It is UAC, which is the anticodon. Similarly, if we take another example, UUU, then the anticodon will be AAA, because uracil will form bond with adenine. Okay, so AAA is the anticodon for UUU. Thank you so much for watching this video. I hope you like this video. So now it's task time. The task is you have to answer a question, and the question is, which ribosome is called द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन A 70S, ऑप्शन B 80S. प्लीज आंसर द क्वेश्चन in the comment section below. I will check it out. Okay, we will meet again in the next video. Till then, bye bye.